When we started moving towards cloning from prokaryotes into eukaryotes, people started seeing that there was a lot of leaky expression, and a lot of genes which were successfully expressed in prokaryotes failed to express in yeast. And one of the single most factors was inappropriate promoters. So, the obvious conclusion was that the expression required improved promoters with better control. Now, how do you define, or what can be the characteristic of an ideal promoter? Ideal promoter is one that is tightly regulated so that the growth phase can be separated from the induction phase. This is a very important concept to understand. For example, अगर आप ग्रोथ फेज में भी आपका लीकी एक्सप्रेशन आ रहा होगा तो वो जो प्रोटीन आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्चुअली दैट्स यूजलेस, दैट्स जस्ट इंटरफेयरिंग. व्हाट यू वांट इज कि आपका एक सेल मैस बन जाए और फिर जब आप इंडक्शन करें तो तब प्रोमोटर फुल स्पीड से जितने भी उसकी एबिलिटी है अपनी फुल एबिलिटी पे, फुल पोटेंशियल पे वो साथ ही एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दे. सो वी वांट आवर प्रोटीन to be produced by a very as tightly regulated as possible. और prokaryotes में we saw earlier कि हमने T7 system से similar sort of lac operon और T7 promoter से हम similar sort of objective gain करते हैं. Now, what happens is that this minimizes the selection of non-expressing cells and can permit the expression of proteins normally toxic to the cell. अगर इसका एक और एडवांटेज है कि अगर आप एक ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं या ओवरऑल आप ओवर एक्सप्रेशन करा रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी डेट्रीमेंटल टू द सेल. अब उसका क्या होता है कि अगर ये लीकी एक्सप्रेशन दे रहा हो तो बेसिकली एक टॉक्सिक बिल्डअप भी होने लग जाता है सेल के अंदर. सो दैट्स अनदर एडवांटेज which tight regulation gives you. And another thing an ideal promoter would have is that it will have a high induction ratio. यानी कि आप थोड़ा डालें, थोड़ा आप उसके अंदर, it depends on inducer as well. Some inducers are cheap, like glucose is pretty cheap. Well, अगर आपको बहुत बड़े स्केल पे ना यूज करना हो या आप उसका कोई एनालॉग डाल रहे हैं, some analogs are very expensive जो मेटाबोलाइज नहीं होते. और अगर हाई इंडक्शन रेशियो होगी इन बिग फर्मेंटेशन रिएक्शन आपको थोड़ा डालना पड़ेगा. तो जब आप ओवर 1 year ऑफ इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन कंसिडर कर रहे हैं, सो दैट बिकम्स अ ह्यूज नंबर टू डील विद. इसी तरीके से द इंड्यूसर शुड बी चीप एंड सम केसेस इट शुड नॉट बी मेटाबोलाइज्ड. क्यों ना मेटाबोलाइज हो? क्योंकि अगर वो मेटाबोलाइज नहीं होगा तो बेसिकली to the length of the reaction it would keep producing proteins. लेकिन अगर कुछ केसेस में मेटाबोलाइज होता भी है तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तब तक सेल्स अपना टू द मैक्सिमम ऑफ देयर एबिलिटी प्रोटीन प्रोड्यूस कर चुके होते हैं. So the first promoters were from genes encoding abundant glycolytic enzymes such as alcohol dehydrogenase, phosphoglycerate kinase or glyceraldehyde 3-phosphodehydrogenase. And these were the strong promoters, and mRNA transcribed from them can accumulate up to 5% of total RNA content. So this is something you need to remember, that that's how you look at whether that how much RNA it gives you. That's one of the ways to look at that how strong the promoter is. Here you have a few examples. And you can see the differences. I don't want to go through all of them, but here you can see that how you can, like, you know, how differently they are regulated. So for example, if you look at PGK, which is glucose induced, then there is galactokinase 1, which is galactose induced, then one is which is phosphate repressed, and then alcohol dehydrogenase, which is glucose repressed. तो इस तरह आप इनको डिफरेंट आगे हम देखेंगे कि आप इनको किस तरह डिफरेंट ग्रोथ मीडिया के अंदर यूज कर सकते हैं कि अगर आप न्यूट्रिएंट मीडिया चेंज कर दें तो आप बेसिकली प्रोमोटर का एक्सप्रेशन
करवा सकते हैं या उसको रिप्रेस करवा सकते हैं। इसी तरीके से ऑल्सो लुक एट दिस मेटिंग फैक्टर अल्फा 1 विच इज कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर वो होता है जो हमारी इंडक्शन के बगैर जिस तरह बग ग्रो कर रहा हो वो उसके साथ साथ फिर भी लगातार प्रोड्यूस करता रहे। इट इज कॉन्स्टिट्यूटिव बट टेम्परेचर इंड्यूस्ड वेरिएंट अवेलेबल। इसी तरीके से MET3 है, रिप्रेस्ड बाय मिथायोनिन एंड सिस्टीन। Let's look at galactose, which is probably the most optimized inducer. और इसके अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्ले करती है, रोल प्ले करती है, वो गैल 80 प्रोटीन है, जो जब इंड्यूसर नहीं होता तो इट कॉम्प्लेक्सेस विद गैल 4 एंड प्रिवेंट्स एक्टिवेशन ऑफ गैल जीन ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब आपके पास इंड्यूसर होता है, विच इज गैलेक्टोज इन दिस केस, इट बाइंड्स टू गैल 4 और अल्टीमेटली गैल ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर देती है। जो इसके अंदर आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है वो ये अंडरस्टैंड करना है कि हाउ यू कैन यूज ऑल दीज थिंग्स विच आर इन योर आर्सेनल, कि आपको किस तरीके से अपना वेक्टर डिजाइन करना है कि आप उसके अंदर यानी कि रिप्रेसर का और एक्टिवेटर का रोल ऐसे प्ले करें कि अल्टीमेटली आप ऑप्टिमाइज्ड इंडक्शन ले सकें। Following addition of galactose, GAL1 mRNA is rapidly induced over 1000-fold and can reach 1% of total mRNA, which is also huge. And however, the promoter is strongly repressed by glucose. And so in glucose-grown cultures, this induction only occurs following depletion of glucose. This is also very nice. Why? क्योंकि जब ग्लूकोज जब तक खत्म होगी तब तक वो रिप्रेस रहेगा, और जब तक वो रिप्रेस नहीं होगा तब तक वो ग्रो करता रहेगा, और जैसे ही खत्म होगी ग्लूकोज देन अल्टीमेटली इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। हियर यू कैन सी मेनी एग्जांपल्स ऑफ promoters being activated by being regulated by methanol induced. These are usually the ones which are being used in Pichia pastoris. इसी तरीके से आप इसमें ये भी देख रहे हैं that you have lactose induced as well and you have strong constitutive ethanol induced ones as well. तो आपके पास ये plethora of promoters are available which are regulated by various things, and these are for example starch utilizer, जिस तरह ME1 जो अल्फा एमाइलेज का है ये माल्टोज और स्टार्च इंड्यूस्ड है, ग्लूकोमाइलेज का इज आल्सो माल्टोज और स्टार्च इंड्यूस्ड है. तो you have this huge, some are peptone induced, so you have a huge repertoire of different promoters which you can actually refer back to this particular presentation and you can see कि आपको कौन सा यूज करना है कौन सा नहीं यूज करना. I have also given you a table जिसके अंदर वो conditions की भी बात कर रहा है कि कौन सी conditions के अंदर ये सबसे ज्यादा इनका optimized expression होता है. So what I want to add to this discussion is that start thinking in terms of promoter expression. For example, आपके हाथ के ऊपर sunlight पड़ती है तो यकदम ही आपको मेलानिन पिगमेंट फैलने लग जाती है. तो उससे पहले जो रिएक्शन होता है, एक प्रोटीन जो फैलती है, मेलानोसोम्स फैलते हैं, मेलानोसोम ट्रिगर होते हैं, तो डेफिनेटली हाई लाइकली देयर विल बी अ प्रोमोटर समवेयर जो यूवी लाइट से इंड्यूस हो रहा हो या उसको किसी किस्म का सिग्नलिंग पाथवे जा रहा हो जो स्टिमुलाई से रिलेटेड हो. तो देयर इज अ ह्यूज रेपर्टायर ऑफ प्रोमोटर्स जो बेसिकली स्टिमुलाई डिपेंडेंट होते हैं. And actually on the daily basis we have been finding a lot and we are still finding a lot. So this is a very active area, have been, and it's a very active area of research, and more advantage come from that how you use all these promoters in a good combination. आपके पास अब इस तरह के रिप्रेसर लैक सिस्टम्स हैं जिसमें अगर आपने मल्टी जीन क्लोन किए हुए हैं तो सिर्फ प्रोमोटर्स के इंटरप्ले से what you do is कि पहले आप एक जीन ट्रांसक्राइब करते हैं, फिर अगला एक्सप्रेस कराते हैं, फिर उससे अगला एक्सप्रेस कराते हैं, और द वे दे आर ऑल कंट्रोल्ड इज by the smart use of promoters.